कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं? इधर अराउंड 550 to 600 लोग, इतना लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। This is rice flour with vegetables in it, especially coriander. Just the wholesomeness of the akki roti. You also get a sense of healthiness when you eat this. ये ठेचा असली ठेचा है, तो सिर्फ हरी मिर्चियों से बनता है। The heartbeat of Maharashtra is misal pav. And please don't laugh at me because this is the way I eat. This in one hand, the pav in the other hand, and I love it. This is made with full ghee. A big fan of green chutney. Quran. Hello, namaskar, and welcome to Khane Mein Kya Hai. Today I'm at BKC Mumbai and I've come here for a meeting, but I left home without eating any breakfast. So I'm a little hungry and peckish. So मैंने सोचा कि यहाँ कहाँ breakfast मिलेगा, तो मैंने ये जगह देख ली suddenly. It's called Udupi to Mumbai. सुबह सुबह उडुपी खाना तो अच्छा लगता ही है, और ये टू मुंबई क्या है? तो चलो अंदर जाते हैं उडुपी टू मुंबई में और पूछते हैं खाने में क्या है। हेलो, तो क्या मिलेगा? दावनगिरी बेन्ने मसाला डोसा। हाँ, जल्दी मिलेगा, फटाफट मिलेगा। ओके चलो, तो एक मैं ऑर्डर करता हूँ। हाँ, हाउ मच? 150 सर। हाँ, ओके, जल्दी आएगा फटाफट। ओके, तो इससे पहले कि मेरा डोसा आए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिटवीन द टाइम आई लीव फ्रॉम हियर and go to my table, I want you to press the bell icon over there and like it and share and subscribe it. Okay, chalo. Done? Let's go. It's early in the morning and I've ordered a bene dosa, which means it's going to be full of butter. Now, let's see how soon it comes. I shall just wait for the dosa. That was quick. Okay, so here it is. Udupi to Mumbai's bene dosa. Let me see. Oh, unusual. The aloo inside is white, unlike the other benes that I've eaten. Just taste it. Love the butter on it. And this is the classic bene dosa, where the outside is golden and crisp. The inside is supposed to be spongy. I'm going to make a mess of myself because that's the way bene dosa is to be eaten. I love the fact that the inside aloo is white. It's very, very different from the benes that I've eaten around. This is really, really buttery. I also like the idea that the palya or the aloo inside is not overpowering the flavor of the dosa itself. Or we try it with a little bit of chutney. It's really buttery. Okay? Sorry, I'm making a pig of myself. They say the true test of the bene dosa is the inside and the outside. You can see that it's full of butter, beautifully golden crisp outside, spongy inside. This bene is very different from the other bene dosas that I've eaten. And I'm very intrigued to find out what is the difference between
this bene dosa and the other bene dosas that I eat, why this tastes a little different, why this tastes more buttery. For that, I'm going to stroll into the kitchen and meet the owner of this place, Chandranna, and figure out why this bene is the way it is. And before I do that, I'm going to have one more bite. Also, it's very important that the chutney tastes fresh because coconut, if you keep fresh coconut, if you keep it for a long time, starts going rancid. This chutney is made on regular intervals. Every hour there's new chutney made, and the sambar also is not kept boiling for the whole day. They make fresh sambar all the time on a regular basis, on regular intervals. And now to go inside the kitchen, meet Chandranna and find the secret of the bene dosa. But don't go away because I'm going to try the full menu right now. This is only the beginning. Picture abhi baki hai. Kyun? This is what I call a big kitchen with great flavors and great aromas rising. And Chandranna is somewhere over there. I need to find him. Chandranna, hello, how are you? Good to see you. Acha, let me introduce Chandranna to you first. This is the man behind this restaurant. और चंद्राना पहले ही मैं बोल देता हूँ, मैंने आकर आपका बेने डोसा खाया यहाँ. It is a fantastic बेने डोसा. लेकिन मैंने बेने डोसा बहुत सारा खाया है. आपके यहाँ का बेने डोसा कुछ अलग है, उसमें कुछ डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है? एक्चुअली सर ये बेन्ने डोसा का वर्जिन हुआ दावनगिरी से. हाँ. ये प्योर व्हाइट मक्खन से बनता है. और बाकी का जो यहाँ खाते हैं वो बटर से नहीं बनता. ये एक्चुअली तुप्पा से बनता है, बनता घी. इसे फर्क ऐसा है कि अगर बेन्ने से बनता है वो डोसा थोड़ा सॉफ्ट रहता है और उसका ब्राउनिश शेड भी आता है और अंदर सॉफ्ट रहता है. ओके. तुप्पा डोसा एकदम क्रिस्प हो जाता है पकने के बाद. ये टू डिफरेंस है बेन्ने डोसा और तुप्पा डोसा. और मेरे को देखने का है. हाँ सर. हाँ सर. अभी दिखाएगा. So now Chandranna, they are going to make पहले कौन सा बनाएगा? हम आपको बेन्ने डोसा कैसे बनाने. पहले बेन्ना डोसा. बेन्ने डोसा बनाओ. अभी ये राइस फ्लावर है. हाँ, ये सर ये बेन्ने डोसा का ये आटा है. हाँ. अपना शेफ बताएगा क्या क्या है इसमें. Entirely different from the other batter. Okay. So we in that we are making urad dal हाँ. and rice flour, wet rice. Wet rice flour. Yeah. Okay. We are missing with a proportion of that one. We have some proportionality is there. Okay. So we mix there. So basically this is chawal, means Yeah. wet soaked rice Wet soaked rice. and urad dal. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेन्ने डोसा. ये व्हाइट मक्खन को हाँ. 3 बार अपने इसको ये करना पड़ता है. 3 बार. 3 बार. एक बार डालेगा, फिर उसको पलटी करेगा, हाँ. फिर दोबारा, फिर उसको ऊपर. ऐसा ये प्रोसेस है. Okay. वो खाली मक्खन में पकना चाहिए, ओनली मक्खन में. ये पूरा डोसा मक्खन में पकेगा. मक्खन. ये प्रोसेस है. Okay. इसका टेम्परेचर 200 डिग्री Approximately 200. इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ा टाइम लगता है और जो बटर है वो धीरे 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 मेल्ट मेल्ट हो गया. गोल्डन कलर. एक कलर एकदम परफेक्ट शेड. परफेक्ट. ब्राउनी. परफेक्ट कलर. जो ये शेड आने हैं तो इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा. ओके. नाइस. अभी और एक लेयर मक्खन डालना पड़ेगा. और मक्खन जाएगा इसमें. व्हाइट बटर. एक और चीज पूछनी थी आपको. हाँ. कि जो बेने डोसा मैंने खाया, हाँ. उसका मसाला, हाँ. उसका वो अंदर white का जो कलर. पालिया, हाँ, जो आलू का. हाँ, ये बेन्ने white डोसा कलर. का. ये देखो, ये बेन्ने डोसा का. ये बेन्ने डोसा का मसाला हमेशा व्हाइट कलर में आना चाहिए, बेन्ने के कलर में आना चाहिए. बेने. ओह. हाँ. So the bene and the masala should both be the same color, white. व्हाइट. White butter, white masala. ये अभी प्रॉपर रेडी हो गया. रेडी हो गया है. ये देखो कलर देखो. ब्यूटीफुल. ये प्रॉपर बेन्ने डोसा. सुपर. Oh, ये बेन्ने डोसा सर प्रॉपर. this is what I ate. Bene dosa with more butter on it. One more blob of butter. अब देखते हैं तुप्पा डोसा.
तो चंद्रा ना, हाँ सर। जब मैं बैंगलोर जाता हूँ हाँ, या हाँ। किसी साउथ में जाता हूँ, ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ही है हाँ। देखने को आते हैं। मुंबई में मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का लार्जेस्ट। इस स्केल पे। हाँ। तो आपने जब उडुपी टू मुंबई शुरू किया, कैसे शुरू हुआ? पहले क्या कर रहे हो मैं रहा था? एक्चुअली सर ये फील्ड में था 94 में। एक बार ये बेन्ने डोसा का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन किया था। हाँ। वो है घाटकोपर में 1994 में। 1994 में। ओके। सब वो ओरिजिनल दावणगेरे का ही एकदम फॉर्मूला लेके आके उसका टीम लेके आके हाँ। इंट्रोड्यूस किया था। समवॉट रीजन फाइनेंशियल बोलो, कोई अपना मैन पावर रीजन, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसका नाम क्या था तब? उसका डोसा किंग था नाम है। मैंने सुना है हाँ, डोसा किंग के उसका बारे में। क्वालिटी इतना अच्छा था। हाँ। लेकिन बोलते ना बिफोर टाइम था वो। हाँ। उस टाइम लोगों को समझ में ही नहीं था ये बेन्ने डोसा क्या हाँ, होता है। हाँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में वापस साउथ का ट्रेंड आ गया है बेन्ने डोसा का। करेक्ट करेक्ट। वापस एक्चुअली हम लोग ने ये उडुपी टू मुंबई जो लॉन्च किया हाँ 2020 कोविड के बाद, हाँ हम लोग सोचा कि पूरा हमारा कॉर्पोरेट का बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब बिजनेस चालू था। अचानक तो और सॉरी मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। हाँ। ये कॉर्पोरेट और एजुकेशन का बिजनेस क्या हो रहा था मेरा कैटरिंग था, कॉर्पोरेट कैटरिंग था, जैसा कि ऑफिस में? ऑफिस में पूरा मेरा फूड कोर्ट चल रहा था। हाँ। 2006 से 2020 तक पूरा इंडिया का catering। टॉप कॉर्पोरेट के साथ था मेरा। टीसीएस बोलो, इन्फोसिस बोलो, हाँ। रिलायंस बोलो। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में हमारा इतना मैन पावर था अचानक। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स और बैंक्वेटिंग, ये हाँ। सब मेरा काम था अप टू 2020। और उस समय जब आप केटरिंग कर रहे थे, हाँ जी। तो किस तरह का खाना कर रहे थे? सब मल्टी क्यूजिन था, सब Multi फूड cuisine। कोर्ट में, जैसे कॉर्पोरेट को लंच, ब्रेकफास्ट, हाँ। ऐसे कॉम्बो टाइप में सर्व होता था। सब Okay। कॉर्पोरेट बोलो, एजुकेशन बोलो, सब जगह पे। लेकिन हम लोग ऐसा दिमाग लगाया कि 2020 में सोचा ये ऐसा सिचुएशन में हम लोग कैसा आगे बढ़ सकते हैं इतना मैन पावर लेके। करेक्ट। तो हम लोग सोचा हम लोग रेस्टोरेंट लॉन्च करते हैं। ओके। तभी अपॉर्चुनिटी मिला पूना मुंबई एक्सप्रेस वे में। तो एक्सप्रेस में तब कोविड में चालू था? एक्सप्रेस वे चालू था तभी। एक ही ऐसा जगह कि रोड बंद था, एक्सप्रेस वे बंद नहीं था। तभी हम दिमाग लगाया कि हम लोग स्पेस ले लिया हाँ। कालापुर में मॉल में। पहला टोल जब मुंबई से जाते हैं तो पहला टोल टोल से उधर ही महाराष्ट्र में रहते हुए प्रॉपर साउथ इंडियन भी चाहिए प्लस महाराष्ट्रियन भी आइटम चाहिए। ये उडुपी टू मुंबई नाम आने का दो रीजन है। एक तो मैं प्रॉपर एक उडुपी का हूँ, ओके। और मेरा जो कर्मभूमि है महाराष्ट्र। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को, और QSR रेस्टोरेंट जो शॉर्ट मेनू रहेगा और क्विक सर्विस रहेगा, इसी हिसाब से मैं कालापुर का मॉल में मैं उडुपी टू मुंबई के नाम से हम लोग लॉन्च किया। उसके बाद हमको अपॉर्चुनिटी मिला, अयोध्या का मंदिर का बन रहा था उस टाइम स्पेस देगा। हम लोग लकीली अयोध्या मंदिर का एग्जैक्टली ऑपोजिट गेट में, ओके। हाँ। एग्जैक्टली मंदिर का गेट में हमको मौका मिला। ओके। उधर भी हम लोग उडुपी टू मुंबई का 2 रेस्टोरेंट शुरू किया। उसके बाद अभी लेटेस्ट आपको बताओ तो अभी तिरुपति में हम लोगों को तिरुमला जो टेम्पल है, तिरुमला बोर्ड से हमको अलॉटमेंट हुआ अरे वाह। उडुपी टू मुंबई के लिए। हमारा नाम से अलॉट मिला। अभी नेक्स्ट मंथ ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा। तो आप सिर्फ उडुपी का नाम नहीं, मुंबई का नाम भी सब हाँ। जगह स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मेरा प्यार बर्थ प्लेस से भी है और मेरा प्यार ये जो है कर्म भूमि से भी। तो कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं? इधर अराउंड 550 to 600 लोग ऊपर और नीचे मिलके इतना लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। और अभी 6 बजे खुलता है और 1:30 बजे रात को बंद होता है। और मैंने सुना है हाँ सर, कि आप 24 आवर्स जाने की सोच रहे हैं। आगे हम सोच रहे हैं, ये हमारा शुरुआत का 2 महीना है। फर्स्ट आगे इधर का परफॉर्मेंस देके हम लोग सोच रहे हैं कि 24, अभी महाराष्ट्र में 24/7 का लाइसेंस भी मिल गया है। अभी हमको उसमें भी हम जाने का सोच रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ सर, उडुपी टू मुंबई है। हाँ सर, मुंबई का खाना क्या है? क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ डोसा खाया है। हाँ सर। मुझे अब बाकी का आपका जो मेन्यू है वो भी खाने का है, टेस्ट करना है। अभी महाराष्ट्र का क्या मिलेगा मुझे खाने को? और महाराष्ट्र में आपको तो पता है हाँ। शॉर्ट मेनू महाराष्ट्रियन फूड में जास्ती वेराइटी नहीं है। हाँ, snacks उसमें ब्रेकफास्ट में समझो थालीपीठ, मिसल पाव, हाँ, साबुदान वड़ा, हाँ, साबुदान खिचड़ी, हाँ। कोथमीर वड़े और भजिया, इनका एक महाराष्ट्रियन का। लेकिन लोग समझते हैं कि आप अगर उडुपी रेस्टोरेंट में जाओगे हाँ। और महाराष्ट्र खाना मंगाओगे हाँ, तो वो नहीं है, ये नहीं होता है। तो हम लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए हाँ, हमारा जो महाराष्ट्रियन फूड जो बना रहे हैं हाँ, वो लेडीज टिपिकल
महाराष्ट्रन लेडीज ही हमारा इधर प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा हाँ वो Okay. ताली पीठ खुद का हाथ से, एक्चुअली ताली पीठ खुद का हाथ से वो बनाते हैं। हाँ। और कोथमीर वड़े, वड़ा का मसाला वो लेडीज का हाथ से जो Typical टेस्ट, home style. होम स्टाइल Home जो style लेडीज का हाथ से जो टेस्ट बनते हैं, कभी मेंस का हाथ पे तो बनते हैं। इसलिए स्पेशली महाराष्ट्रन फूड के लिए हम लेडीज के हाथ से ही बनाते हैं। हाँ, उनका इंग्रेडिएंट बनाते हैं। और तो अभी मैं बैठकर खाने वाला हूँ पूरा हाँ, सर। मेन्यू। मैंने हाँ, सिर्फ सर। डोसा खाया, हाँ, तो सर। मेरा तो तुप्पा डोसा भी खाने का है और महाराष्ट्रियन मेन्यू जो ब्रेकफास्ट वो भी खाएगा। हाँ, हाँ। चलो तो बैठ के अभी खाते हैं। और अभी आगे आपके प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर एक्सपेंशन ऐसा है कि 100 आउटलेट तो मिनिमम मेरा बनना चाहिए, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। एक्चुअली हाँ, और ये उडुपी टू मुंबई को ग्रोथ बहुत अच्छा तरीके से मिला बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। concept is good. हाँ. What we want? You want good concept, या good location, Good. good food, गुड क्वालिटी good एंड quality. हाइजीन। Absolute hygiene. और एक मेरा स्पेशलिटी है, मेरा किचन को मैं हमेशा Open शोकेस रखता हूँ। showcase. Correct. तो Open लोग देख kitchen. सकते हैं कि हाँ. कितना हाइजीन चल रहा है। हाँ सर, ये हमारा स्पेशलिटी। थैंक Thank यू you, सर, sir. थैंक यू। मैं एक आपको प्रॉमिस करता हूँ हाँ. कि आप बाजू में कोस्टल रेस्टोरेंट निकाल रहे हो, हाँ 3 महीने में रेडी हो जाएगा। एकदम रेडी हो हाँ? जाएगा। शुरू भी किया वो, अब जस्ट 1 वीक हो गया। अभी आने वाला समय में उधर लाइन भी लग जाएगा। तो 3 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's chicken in a minute. Come together with Drankies. So सर, ये तो पूरा वाइडेस्ट स्प्रेड I've seen in the longest time. अच्छा, तो ये उडुपी टू मुंबई है। क्या है सर? हाँ, एक एक करके आप मुझे बताओ कि मैं क्या ये करने वाला हूँ। हमारा उडुपी और महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट मिक्सचर है। उडुपी टू मुंबई, इसलिए तो उडुपी टू मुंबई इसका नाम है। हाँ, आपको एक एक डिश का मैं आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ। करेक्ट ये है थालीपीठ, महाराष्ट्र का है करेक्ट। और टिपिकल हैंडमेड थालीपीठ है ये। वो 5 भोग बना के या बना के, हाँ, ग्रेन्स का सब मिक्सचर करके बनता हाँ. है। ये उस अपना सिंग का चटनी है, एक उसका टेचा है हाँ. विद दही है। ओके ये महाराष्ट्र का डिश है विद व्हाइट बटर। विद वाइट बटर। व्हाइट और आपने मुझे कहा कि ठेचा जरा संभाल के खाओ क्योंकि हाँ, ये ओरिजिनल टेचा है। ओरिजिनल ठेचा महाराष्ट्र है। ओके, उसके बाद तो तुप्पा डोसा है। करेक्ट। तो वो अपना डिफरेंस है बेने और तुप्पा का आपको डिफरेंस तो समझा दिया। करेक्ट। ये तुप्पा है। तुप्पा एक्चुअली पूरा डोसा बनने के बाद एकदम क्रिस्प और ब्राउन शेड हो जाता है Correct, एकदम, correct, ये क्रिस्प शेड। उसके बाद ये पनियारम पनियारम। है सर, ये भी पॉपुलर है अभी देश है। उसके बाद ये तट्टे है, तो बहुत ही पॉपुलर है तट्टे इडली, विद देसी घी विद पाउडर। पोड़ी पाउडर डाल के या, उसपे ये भी बहुत लोग पसंद करते हैं। उसके बाद ये डिश है अपना साबूदाना साबूदाना खिचड़ी। महाराष्ट्र का तो साबूदाना खिचड़ी, और उपवास में तो आपको महाराष्ट्र लोग साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा, ये तो इसका बिना चलेगा ही नहीं है। चलेगा ही नहीं। उसके तो ये टिपिकल वड़ा, बटाटा महाराष्ट्रन टिपिकल महाराष्ट्रन टेस्ट में। और ये आया अक्की रोटी। एक्चुअली अक्की ये रोटी। बेंगलुरु रीजन में जास्ती बिकता है अक्की अच्छा, रोटी। ये अक्की रोटी है। ये हाँ सर, मेरे को लगा ये कि कुछ टिपिकल राइस फ्लोर से बनता है हाँ विद थोड़ा वेजिटेबल सब मिक्स करके, और उसके साथ भी थोड़ा टेचा, ठेचा और ये थोड़ा और ये दो- टमाटो चटनी है। ये टोमेटो चटनी जाता है। ये बेंगलुरु में बिकता है टोमेटो चटनी के साथ विद व्हाइट बटर। ओके, उसके बाद ये बिशीबेले बात, टिपिकल इसी बेले भात। टिपिकल बेंगलुरु टेस्ट है सर। यस, दिस इज अ ये टिपिकल पॉपुलर इन बेंगलुरु, ये बहुत ही पॉपुलर इन बेंगलुरु है। हम्म। उसके साथ थोड़ा ये रायता। रायता के साथ है। और ये वापस अगेन महाराष्ट्रन डिश है। ये कोथमीर वड़ा है। ये तो पूरा महाराष्ट्र के अंदर कोथमीर वड़ा तो एक कॉमन डिश है, फेमस है, Famous है। कोथमीर वड़ा। कोथमीर वड़ा। उसके बाद मिसाल पाव है। इसका बिना लोगों का मन नहीं होता। मन नहीं होता। और ये इसका उसका- कट और हाँ, उसर है, हाँ, और उसर। ये तो मिक्स मैं करके खाऊंगा फिर उसको। उसके बाद ये वड़ा पाव है। वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव। और ये है रागी रोटी। रागी रोटी। ये एक्चुअली बहुत ही हेल्दी डिश है। रागी तो आपको पता है, तो हेल्दी है। इसको हेल्दी में कहा सकता है। ये रागी फ्लोर से बना हुआ है विद मिक्सचर ऑफ सम ऑनियन एंड ऑल मिक्सचर। उसके साथ भी व्हाइट बटर के साथ देता है। थैंक यू सो मच। आप अब पूरा मैं आराम एक से एक बैठ के करके- खाने वाला हूँ हाँ सर, टेस्ट कर लीजिए। और फिर यहीं कहीं सो जाऊंगा मैं। हाँ, इतना खाने के बाद ओके? नींद आएगी जरूर। नींद आएगी। और नहीं आने तो कॉफी पी सका हूँ आपके। कॉफी, गुड प्योर फिल्टर हाँ जी, कॉफी। बेटर थैंक यू जी। थैंक यू। चलो लेट्स ईट दिस।
Chalo, so I'm going to start with the tuppa dosa. Now this dosa is a little different from the bene. This is far more crisper on the outside, and I'm going to show you. I'm going to literally knock on it and show you how crisp this is. The masala or the batata ka aloo ka jo bhaji hai andar, iska yellow hota hai, and this is made with full ghee, unlike the bene which is fully butter. A big fan of green chutney. Quran. Also, there's a little podi on the dosa, so that it adds to the spice, and then aloo ka sabzi, which is perfect. I think what makes this sabzi, generally in a dosa, is the amount of onion that is used. Unlike a puri bhaji aloo sabzi, which is very different from this. Some Udupi restaurants in Mumbai just serve you the aloo sabzi, which is comes from the puri bhaji. This is the onion makes a huge difference. It makes the potato softer. It makes it a little sweeter. Quite amazing. But the key of this dosa is the crispiness. Can you hear? Crunch, crunch, crunch. Okay. Now, paniyaram. Paniyaram are little dumplings made out of rice flour, a bit like fermented with dill inside, kadi patta, vagar. I just love them. And they're made in these wonderful appe containers, which is a iron container with holes in it, and that's how you get this shape. Very nice. Again, the whole joy of having a crisp and crunchy outside and a soft inside, exactly like this. There's so much more character than just an idli, although an idli is great. Okay, now I'm just thinking, shall I finish up all the South Indian food before I get to the Maharashtrian food? I think that's not a bad idea. Let me try this akki roti. I think it's made in the same way as the thali pit is done, but the atta is different. This is rice flour with vegetables in it, especially coriander. This is the red lasan ki chutney. And I'm going to eat very little thecha because I am not a big... It's just the wholesomeness of the akki roti. You also get a sense of healthiness when you eat this, and it's very, very flavorful because of the chopped onion and the coriander and the green chilies inside. And again, you got this, you know, when rice crisps from outside and अंदर से नरम रहता है, तो इसका एक और ही मजा आता है. और ये चटनियाँ बहुत अच्छी है. ये ठेचा असली ठेचा है, तो सिर्फ हरी मिर्चियों से बनता है. Similar to this, ragi. Ragi roti. Again, if you go to Bangalore, you find this in a lot of places, extremely healthy, especially if you eat it with butter. You've got this rustic flavor of the ragi roti, with crisp outside, with a heavy garlic flavor coming, green thecha, sourness of the tomato chutney, and then the lusciousness of the butter. अब क्या खाए? बिसी बेले भात खाए क्या? बिसी बेले भात is something you get in any Bangalore eatery that you go to. It's just this unbelievable concoction of rice with lentils and vegetables. It's like one bowl meal. And over here, they've also put a garnish of a little bit of bundi on top. It makes it quite interesting. Also, the vagar or the tadka is done with dry red chilies. Very typically Bangalore. It's a medley of spices and rice and vegetables and garam masalas, and it's just wonderful. And if you can cool it with a little bit of raita, even better. So I think I'm principally done with the South Indian food, except for the thatta idli, which I'm going to go for right now. Thatta idli, which is the craze right now, is the softest idli with a lot of gunpowder or podi as it is called, and ghee, soaked in ghee.
You know, the puri is granular. You get a little bit of dana under your teeth. The soft idli, the slightly crunchy puri, all coming together with this ghee. Please forgive me that I'm having only one bite. Because इतना सारा खाना थोड़ा मुश्किल है. फिर भी मैं आपके लिए try कर रहा हूँ. Let's hit the kotimbir vadi. This is an amazing dish. Made out of besan, first steamed and then it's fried. Look at it inside. And the key to getting this kotimbir vadi right is of course all the coriander and the green chilies and the masala that goes in. But it's very light and fluffy. Very light, fluffy, you know, because it's first steamed and then upar se fry karte hain. Now, for what can easily be called the heartbeat of Maharashtra. The heartbeat of Maharashtra is misal pav. Aha! So everybody knows now, by now, that misal contains 2-3 things. One is the usal, which is what this is. Kat or the tari, which is here. This top layer of oil is where it loads all the spices and carries all the spices, tari, and the farsan that goes on top. Let's do this properly. And please don't laugh at me because this is the way I eat. This in one hand, the pav in the other hand, and everybody should serve the sev papdi and the farsan separate and the usal separate, so you can actually balance it the way you want to balance it and also get the kind of crunchiness that you want. I love it. Mumbaicha Raja Kon? Vada Pav. This is the batata vada, this is the red chutney, this is Mumbai's pav, and this is me eating it. 50% of the battle is won when the pav is fresh. Balance 50% is it has to be hot and piping hot. And this is how it is. Oh, I love it. I know everybody in Mumbai is going to give me galis for saying this, but what I like better than vada pav, it's just the batata vada. I'm going to end this with a sip of filter coffee because how can I come to an Udupi restaurant and not have filter coffee? तो ये था हमारा एपिसोड. आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर विद अस, कमेंट कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है. Very nice. After a very long time, I've eaten so much food and I'm feeling very good. The thetsa has gone up my nose and mouth and everything, and it's really spicy and really nice. Batata vadas are very good. Huh? This thetsa or that one? That same thetsa, but Which one was better out of the two? eat. I'm giving you to eat. I'll take it with thetsa. And you'd see how batata vada tastes better than vada pav. Any day, I do it. Correct? It's generally nice, but Yeah. so Very good.